Hello everyone and welcome back to my channel. This is Vedika, and if you are a new mom or a new dad, or if you're about to be one, then this video is for you. In today's video, we'll talk about how to burp a baby. Every parent wants to do what's best for their babies, and every parent learns new things every day, especially if you are a first time mom or a dad. Taking care of a newborn can be daunting at times, and hence we try to grab all the correct information to make things easier, smoother and encouraging. In today's video, we'll understand why it is important to burp a baby, especially a newborn, and क्या-क्या तरीके हैं to do it. Also, इस वीडियो के एंड में I'll give you a bonus tip related to burping, so please do keep watching till the end. But before we begin, please click on the big red box and subscribe and join in. Also, ring the bell so your phone will yell the next time I put up a new video. Okay, so without any further ado, let's get into the video. सबसे पहले let's understand why burping is important for a newborn. So burping is an integral part of feeding a baby. बर्प करने से बेबी के पेट में जो भी एयर होती है जो वो swallow या ingest करता है while feeding, वो निकल जाती है and the baby feels more relaxed. बर्प ना करवाने से the baby may feel full, bloated and uncomfortable. There are several reasons जिनकी वजह से बेबी के पेट में गैस क्रिएट होती है and burping becomes more important. The number one reason is digestion. बेबी के इंटेस्टाइन में फूड ब्रेकडाउन होने से नेचुरली ही गैस क्रिएट होती है. Now, this food is mainly milk for newborns or up till the age of 6 months, and some solids in case of babies above 6 months of age. Number 2 is mother's diet. Breastfeeding mothers की डाइट से भी बच्चे को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. ये भी हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर फूड आइटम से मदर को और बेबी को दोनों को गैस बनती हो. फॉर एग्जाम्पल pulses like rajma, chane, urad dal, or vegetables like cauliflower, broccoli, cabbage, foods rich in carbohydrates, sodas, fruit drinks, ये सब की वजह से गैस क्रिएट हो सकती है. And dairy is another contributing factor to creating more gas. तो बेसिकली मदर जो भी खाती है या पीती है, it passes on to the baby. Number 3 is food intolerance और allergies. कभी कभी बेबी को एक पर्टिकुलर फूड आइटम से एलर्जी हो सकती है या एक पर्टिकुलर फॉर्मूला मिल्क से एलर्जी हो सकती है, जिसकी वजह से और ज़्यादा गैस क्रिएट होती है बेबी के स्टमक में. सो आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ इंटॉलरेंस. Number 4 is too much air in the bottle. बच्चे का फॉर्मूला मिल्क प्रिपेयर करते वक्त इफ़ यू शेक द बॉटल विग्रसली, तो उसकी वजह से बॉटल में या फॉर्मूला मिल्क में बहुत ज़्यादा एयर बबल्स बन जाते हैं. व्हेन द बेबी ड्रिंक्स दिस मिल्क, तो ये एयर बबल्स उसकी बॉडी में जाकर एक्सेस एयर या एक्सेस गैस क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से बच्चा अनकंफर्टेबल फील करता है. सो वाइल यू प्रिपेयर द मिल्क, डू नॉट शेक द बॉटल टू मच एंड ऑल्सो लेट इट रेस्ट फॉर अ कपल ऑफ मिनट्स बिफोर फीडिंग द बेबी, सो एज जो एयर बबल्स क्रिएट हो जाते हैं वो सेटल डाउन हो जाए. एंड नंबर 5 इज़ निपल फ्लो. सो बेसिकली बॉटल की निपल्स या टीथ्स को क्लासीफाई किया जाता है एज पर बेबीज एज, लाइक preemie, newborn, 3 to 6 months, 6 months plus, and so on. So you have to use the correct nipple flow for your baby. अगर आप higher flow वाला teeth use करते हैं for a baby who's smaller in age, तो वो ज़्यादा milk गल्प करेगा, वो spit up भी कर सकता है, उसे और ज़्यादा और excess air भी swallow करता है baby, and वो uncomfortable feel करता है. अगर आप स्लोअर फ्लो वाला टीथ यूज़ करते हैं फॉर अ बेबी हु इज़ ओल्डर, तो उसको और ज़्यादा मेहनत लगती है एंड ही हैज़ टू सक हार्डर टू गेट द मिल्क आउट ऑफ द बॉटल, जिसकी वजह से भी द बेबी मे इंजेस्ट मोर एयर.
तो इन दोनों ही केसेस में एक्सेस एयर बॉडी में जाती है एंड गैस क्रिएट होती है फॉर द बेबी एंड इट बिकम्स मोर एंड मोर इम्पॉर्टेंट टू बर्प द बेबी। तो चलिए आइए अब देखते हैं दैट हाउ यू कैन बर्प योर बेबी। देयर आर सेवरल पोजिशंस that may help you to burp your baby, and I've used these to burp my son as well. So the first position is to hold the baby upright with his or her head resting on your shoulder. So basically इस position में आप बेबी को इस तरह से hold करते हैं with your one hand on the back supporting the baby, then slowly rest his or her head on your shoulder. Move your hand to the butt area and then pat the back gently. This is the classic position to burp a baby. Second position is sit your baby on your lap. So in this position आप baby को अपने lap में इस तरह से बिठाएंगे. Move him a little forward. अपने एक hand से उसके chest और neck को support देंगे and then with the other hand gently pat on the back. इससे बेबीज़ को बर्प करने में हेल्प होता है। नंबर 3 इज़ ले योर बेबी फेस डाउन ऑन योर लैप। सो दिस पर्टिकुलर पोजिशन आई विल नॉट रिकमेंड यू टू यूज़ इट व्हेन योर बेबी हैज़ जस्ट completed his feed. आप इसको तब यूज़ कर सकते हैं जब बेबी ने कुछ टाइम पहले फीड लिया है एंड बेबी को गैस हो रही है जिसकी वजह से बेबी रो रहा है या अनकंफर्टेबल है। So basically in this position you lay down the baby like this on your lap. ध्यान रखें कि उसका फेस उसके चेस्ट से ऊपर हो and then gently pat on the back. बेबी की लेग्स पीछे होंगी, हेड थोड़ा अप होगा चेस्ट से and then you gently pat on the back. धीरे धीरे थपकी दे। इससे बेबी के पेट में जो एक्सेस एयर अक्यूमुलेट हो जाती है वो रिलीज भी होती है। And now is the time for our bonus tip. So मेरा bonus tip to help you with burping your baby is changing positions. So basically अगर आप एक ही position में अपने बेबी को burp करवाने का try कर करके थक गए हैं, then changing the position may help you. Like अगर आप अपने लेफ्ट शोल्डर पे बेबी को burp कराने का try कर रहे हैं, बहुत टाइम से एंड बेबी बर्प नहीं कर रहा है, देन यू मे मूव द बेबी ऑन टू योर राइट शोल्डर और मे बी यू कैन मूव द बेबी टू योर लैप. Follow the instructions that I have given earlier and try to burp the baby by gently patting on the back. Trust me, ये टेक्निक मैंने और मेरे हस्बैंड ने बहुत बार ट्राई करी है एंड इट हैज़ मोस्टली प्रूव टू बी सक्सेसफुल फॉर अस. सो यू शुड गिव इट अ ट्राई. ऑन द सेम नोट ये भी जानना इम्पॉर्टेंट है कि बेबी को कितनी देर के लिए बर्प करवाना चाहिए एंड व्हाट इफ़ माई बेबी डज नॉट बर्प. सो इट इज़ एडवाइजेबल टू बर्प अ चाइल्ड फॉर अप्रॉक्सीमेटली 10 to 15 minutes एट मैक्स. इतने टाइम में यूजली बेबीज़ बर्प कर ही लेते हैं, बट मैंने कुछ पेरेंट्स ऐसे भी देखे हैं जो बहुत टेंस हो जाते हैं कि हमारे बेबी ने बर्प नहीं किया है. उनको लगता है कि बर्प करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इसके लिए वो लगे रहते हैं बहुत टाइम तक बेबी को बर्प करने के लिए ट्राई करते रहते हैं. बट डियर पेरेंट्स, अगर आपका बेबी बहुत देर ट्राई करने के बाद भी बर्प नहीं कर रहा है तो इसमें टेंशन की कोई बात नहीं है. जैसे हम लोग बर्प नहीं करते हैं आफ्टर एवरी मील, वैसे ही बेबीज़ डू नॉट बर्प आफ्टर एवरी फीड. सो इस बारे में टेंशन लेना, परेशान होना बंद कीजिए. डोंट वरी, आपके बेबी को कुछ नहीं होगा, उसका स्टमक भी ख़राब नहीं होगा. ये जो गैस बेबी के स्टमक में या पेट में होती है वो अपने आप कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेती है टू एग्जिट द बॉडी. ऊपर से नहीं तो नीचे से, फॉर एग्जाम्पल थ्रू फार्ट्स. Additionally, newborn babies you may also try leg exercises to release gas, and if you think that your baby has gastric problems more often. Please do write in the comment section below if you want me to make another video on how to do leg exercises in newborns.
to release gas. And मैंने अपने baby must haves for 0 to 3 months वाले वीडियो में mention किया था about a roll on जो कि बेबी को गैस्ट्रिक इश्यूज़ में हेल्प करता है. तो उस वीडियो को ज़रूर देखें. ऊपर एक लिंक आएगा, प्लीज़ क्लिक ऑन दैट लिंक एंड डू वॉच दैट वीडियो. आई विल ऑल्सो पुट अप अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. With this, I will end my video. I hope आपको ये वीडियो अच्छा और informative लगा होगा and इससे आपको help होगी. If you like this video, please give it a big thumbs up and इसे अपने friends के साथ share करना मत भूलेगा. Stay connected, stay safe and bye for now.